Hello guys, good morning. Today we will discuss for the class 11th, that is the structure of the bacterial cell. In the previous video we have discussed about the flagellation in the bacteria on the basis of presence or absence of flagella, and what is what are their location on the body of bacterium. That is the many kinds of bacteria are present in the nature. That is monotrichous bacteria, atrichous bacteria, amphitrichous bacteria, etc. Okay. Now we will discuss in brief the structure of the bacterial cell. You know that bacteria, the body of bacteria is so planned to live in the nature in any environmental conditions, even in harsh conditions. You know that the bacteria is the unicellular organism, microscopic organism, prokaryotic organism, and bacteria are included in the kingdom Monera. Okay? कहने का मतलब यह है कि बैक्टीरिया की बॉडी इस तरह से बनी होती है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में, हवा में, पानी में या पानी के अंदर गहराई में, इवन हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं. इस तरह से इनकी बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है. ओके, सो व्हाट आर द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल is given on the blackboard. So this is the structure of the bacterial cell. You know that it is the prokaryotic cell, microscopic cell, unicellular cell, and I will briefly describe the structure, different parts of the bacterial cell. Firstly, we will take the position to see the different structure of the bacterial cell, and after that I will briefly discuss about every component of the bacterial cell. Okay, so bacteria, the structure of bacteria में भी focus राउंडेड हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, स्पिंडल सेल भी हो सकता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, गामा सेल भी हो सकता है. तो वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड शेप, एंड आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो different kinds of bacteria on the basis of their shape and size. Okay, so now the outer layer of bacteria is called slime layer. Slime means चिपचिपा होता है. Slime layer एक पतली चिपचिपी परत होती है, मोटी. अब ये स्लाइम लेयर अगर ये कार्बोहाइड्रेट का बना है, इसका बना है, इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट है तब तो इसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन इसमें मिला हुआ है तब इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं. बट बोथ आर द प्रोटेक्टिव ऑर्गन, एंड द स्लाइम लेयर और कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम desiccation, and in every harsh condition the bacteria are survived due to the presence of slime layer. यानी बैक्टीरियल सेल की प्रोटेक्शन करता है, सूखने से बचाता है कौन, स्लाइम लेयर या कैप्सूल. एक बार फिर बता दें, अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो केवल स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं. पूछा जाता है. जस्ट बिलो द स्लाइम लेयर another thick layer is present, that is called cell wall. So due to the presence of cell wall, bacteria are included in the plant. Okay, so cell wall is not made up of cellulose like the green plant, but it is made up of carbohydrate and protein, and the word is called peptidoglycan. Peptidoglycan. Okay, क्योंकि पेप्टिडो में प्रोटीन होता है, ग्लाइकान में कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों पाया जाता है. तो सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकान की, एंड जस्ट बिलो द सेल वॉल अनदर थिन इलास्टिक एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आफ्टर देन certain infoldings occurs
in the plasma membrane, and these enfoldings are called mesosome. Okay. Next, nuclei. You know that in prokaryotic cell, definite nuclear membrane is absent. So true nucleus is not present. The DNA embedded. The DNA are moving in the cytoplasm, and that DNA is called naked DNA. Or such naked DNA is called nucleate. Okay, this is the genetic material that is having the genes that determine the characters of bacteria. Okay. Next one is cytoplasm. You know that every cell has the cytoplasm, and Purkinje said that the cytoplasm is the physical basis of the life. अगर किसी सेल में साइटोप्लाज्म नहीं है तो वो सेल सर्वाइव नहीं करेगी, इनएक्टिव होगी और डेड कर जाएगी। साइटोप्लाज्म जानते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं। ओके, क्योंकि ये सारी चीजें आप इस प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में 7 केस राइबोसोम पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, क्या 50s यूनिट प्लस 30s सब, दोनों मिलकर के सेल में। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सर्टेन small appendages like structure, hair-like structure are present all over the body. That is called sex pili. But sex pili present only those bacteria which take part in conjugation. Conjugation is a process of reproduction. जिस बैक्टीरिया में कंजुगेशन होता है, यानी दो बैक्टीरिया पास आते हैं और एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं। बाकी बैक्टीरिया जो कंजुगेशन में भाग लेते हैं उनमें सेक्स पाइली नहीं पाई जाती है। और ग्लाइकोजन वगैरह जो स्टोरेज मटेरियल है, जो भोजन बनता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देयर आर मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ग्लाइकोजन्स आर प्रेजेंट। दिस इज द स्टोरेज पार्टिकल ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, सर्टेन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यानी बैक्टीरिया के जो न्यूक्लियाई के अलावा भी एक डीएनए अलग से पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड वैसे तो कई तरह का होता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। इसको एक्स्ट्रा डीएनए कहते हैं। अब वन बाय वन हम फिर एक बार करेंगे। सबसे बाहरी लेयर क्या है? स्लाइम लेयर, जिसको कैप्सूल कहते हैं। स्लाइम लेयर मेड अप ऑफ ओनली कार्बोहाइड्रेट, बट इफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बोथ आर प्रेजेंट, then this layer is called capsule. This is the protective layer that prevent the bacterial cell from desiccation and other harsh condition. कठिन परिस्थितियों से बचाता है, सूखने से बचाता है। इसके नीचे सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। सेलुलोज नहीं होता है, पेप्टिडोग्लाइकान होता है। ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर इसके बाद जो क्या है? फ्लैजेला है। अब फ्लैजेला के आधार पर भी बैक्टीरियल सेल क्या है? मोनोट्राइकस। क्या है? मोनोट्राइकस। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल फ्लैजेलम एट वन साइड ऑफ द बैक्टीरिया, एट वन एंड ऑफ द बैक्टीरिया। तो एक फ्लैजेलम है, इसलिए ये इसका फिगर है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेल वॉल। Plasma membrane, you know that in 9 classes made up of protein and lipid according to fluid mosaic model that was given by Singer and Nicholson. Okay, mesosome. These infoldings of the plasma membranes are called mesosome. And mesosome, firstly, earlier it was observed that it helps in respiration, and it is a homologous organ to माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया क्या देती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से बैक्टीरियल सेल में एनर्जी प्रोड्यूस कौन करता है? मेसोसोम करता है। लेकिन रिसेंट डिस्कवरी, हाल में पता चला है कि मेसोसोम का एक रोल और भी होता है, किसमें? सेल डिवीजन, बाइनरी फिशियल वगैरह, बीच में एक पट बनता है और जिससे दो सेल आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो दो काम है, एनर्जी प्रोडक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा सेल डिवीजन। ये दोनों काम कौन करता है? मेसोसोम करता है। फिर इसके बाद न्यूक्लियाई, ये हम लोग की तरह से जैसे क्रोमोसोम होता है उसी तरह से नेकेड डीएनए पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो न्यूक्लियाई इज द मेन कैरेक्टर of the prokaryotic cell,
After that, cytoplasm, you know that cytoplasm consists of organic and inorganic material. Cytoplasm is the matrix, gel-like matrix, salt-like matrix, यानी जेल और सॉल्ट के सॉल्यूशन के कंडीशन में बदलता रहता है. तो cytoplasm is very necessary for the survival of the bacterial cell. Eighth one is plasmid. This is the extra DNA present in the bacterial cell, and plasmid have a certain kinds of genes, and these genes help the bacteria in the reproduction, and certain plasmid have the resistant gene. यानी इसी प्लाज्मिड से जो है हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन भी करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड इसी एंटीबायोटिक प्लाज्मिड के कारण जो है बैक्टीरियल सेल पर, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल पर जो है एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ओके, तो बहुत तरह के प्लाज्मिड होते हैं, वो आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे. एंड नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द पाइली और फिम्बरी. दो वर्ड है, तीन वर्ड है. पाइली और फिम्बरी एक ही वर्ड है. पाइली फ्लैजेला किसके बने होते हैं, फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं. पाइली किसके बने होते हैं, पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं. और ये फिम्बरी जो होती है, ये बॉडी के ऊपर तमाम छोटे छोटे हेयर लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसको पाइलिया फिम्बरी कहते हैं. दीज अपेंडेज हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एनी सबस्ट्रेट, किसी आधार से बैक्टीरिया को चिपकने में मदद करते हैं. और एक और इंपॉर्टेंट है सेक्स पाइली. हमने बताया सेक्स पाइली की संख्या 4 से 6 होती है, लेकिन ये सेक्स पाइली उन्हीं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस होती है कंजुगेशन, जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में भाग लेते हैं और एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, या प्लाज्मिड को एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, जिसको कंजुगेशन कहते हैं. तो उन्हीं बैक्टीरिया में सेक्स पाइली पाया जाता है जो कंजुगेशन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लेती हैं. So this is a briefly discussion of the description of the bacterial cell structure. Okay, thank you.